Hello, my dear students. Good morning, all of you. Myself, Pushpendra Bhardwaj, Assistant Professor, Department of Education, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today we will discuss on oligopoly, features of oligopoly, and uh, collusive and non-collusive oligopoly, perfect and imperfect oligopoly. प्रिंसिपल बेसिस ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन, इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम आज. इट इज़ ए ओलिगोपोली इज ए फॉर्म ऑफ द मार्केट इन विच देयर आर ए फ्यू बिग सेलर ऑफ ए कमोडिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं होती. इसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं मार्केट्स के, जैसे ओलिगोपोली है, मैंने मोनोपोली पढ़ाई थी, को मोनोपोलिस्टिक पढ़ाई थी और परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाया था. इसमें सारी चीज़ें जो उनकी कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है, ये केवल एक डेफिनेशन, वही डेफिनेशन है जो उसके फीचर के बेसिस पर है. जो ईच सेलर हैज़ ए सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द मार्केट बिकॉज देर आर ओनली ए फ्यू सेलर्स. Price and output decision of one seller significantly impact the price and output decision of other in the market. Accordingly, there is a high degree of interdependence among the sellers regarding their price and output policy. Example, there are only a few car producers in the global market. Toyota, Ford, GM, Audi, BMW, Volkswagen are some well-known brands. मारुति सुजुकी एक्सेट्रा. और एग्जांपल लूँ मैं ओलिगोपोली का, तो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज कितनी है? 8, 7, 9, इससे ज़्यादा नहीं है. मैं और बात करूँ सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज़ की, तो कितनी है सॉफ्ट इंडस्ट्रीज़ में? पेप्सी, कोको कोला, और बताओ एक दो और होंगी, रेड बुल है, कुछ और है, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं. और बात करूँ एयरलाइंस की, एयरलाइन इंडस्ट्रीज़, तो एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ में कितनी है? स्पाइस जेट इंडिया में, तो स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इंडिगो, किंग फिशर था, किंग फिशर बंद हो गया, कुछ और होंगे एक दो और, बस इससे ज़्यादा नहीं है. नाउ फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, ये सारे एग्जांपल्स दिए मैंने आपको. अब फीचर्स की बात करें ओलिगोपोली की, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फार्म्स. जो कुछ स्मॉल फर्म्स होंगी, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स मतलब नंबर्स जो होगी फर्म्स के वो कम होंगी, जितनी 8, 10, 15, इससे ज़्यादा नहीं होंगी. और बिग फर्म्स, बड़ी फर्म्स होंगी. जैसे कि अब बात करूँ मैं टाटा मोबाइल्स की, टाटा मोबाइल्स कितना बड़ा इंडस्ट्री सेक्टर है उसका. एयर इंडिया की कितनी बड़ी वो है, प्रॉपर्टी वगैरह सब, कितना मार्केट्स में कितना है उसका. इस वजह से बिग फर्म्स होंगी और स्मॉल नंबर्स ऑफ बिग फर्म्स. High degree of oligopoly market is the one in which a small number of big firms dominate the market for a product. Accordingly, there is a high degree of market concentration. Market dominance is sustained through intensive advertising for the brand products. Established brand loyalty renders demand for the product are relatively inelastic. High degree of interdependence. Oligopoly market is characterized by a small number of big firms in the industry. Each firm is so big in size that quite often it has global presence, selling its product across all parts of the world. The market share of each firm is so significant that it can pursue its dependent price and output policies. जो इट्स इंडिपेंडेंट प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी, जो इन फर्म्स की प्राइजेज पॉलिसी होती है, इंडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी होती है, अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है, हमारे अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होती है वहाँ. इट्स एस्टाब्लिश ब्रांड लॉयल्टी रेंडर्स डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एज ए रिलेटिवली price and output policy, but not without a competitive reaction from the rival firms. कॉम्पिटिटिव फर्म्स के बीच में विदाउट, नॉट विदाउट, कंपटीशन होता है दोनों के बीच में.
because there is a small number of firms and because each firm commands a significant share of the market. There is very high degree of interdependence among the rival firms with regard to their price and output policy. Price and output behavior of one firm significantly depends on the possible reaction of rival firm in the market. Thus, a firm may be reluctant to raise price of its product simply because the rival firms may not raise it, implying a significant loss of market of rival firms. Likewise, a firm may be uh, repl- uh, reluctant to lower the price of its product, fearing that be fearing that the rival firms may lower it by higher margin, again implying loss and market of rival firm. Thus, due to interdependence, it's become very difficult to predict any specific relationship between price and outputs of a firm. Before taking any business decision, a firm must account for the possible reaction of rival firm in the market. It is precisely because of this this region, high degree of interdependence, that it has not been possible to develop a generally acceptable theory that explain how an oligopolist achieve an equilibrium. जो इंटरडिपेंडेंस प्राइस है, हाई प्राइस होगी, अगर कोई एक फर्म ने भी अगर प्राइस चेंज कर दी तो दूसरी फर्म को प्राइस चेंज करनी ही पड़ेगी. इसमें इंक्रीज नहीं कर सकते फर्म को. अगर किसी भी फर्म ने प्राइस को इंक्रीज कर दिया, अगर थोड़ी सी भी इंक्रीज किया प्राइस को, तो उसके जो मार्केट जो शेयर होगा वो मार्केट शेयर में बहुत ज़्यादा सा परिवर्तन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंजेबल आ जाएगा. क्योंकि अदर कुछ गिने चुने तो पूरी फर्म्स हैं यहाँ, तो फर्म्स कुछ गिनी चुनी है तो प्राइस में एक चेंज कर देगा, तो दूसरा वाले के पास क्यों जाएगा. हम अगर कोको कोला प्राइस चेंज कर देता है तो हम पेप्सी पियेंगे ना भाई. बस एक ब्रांड रॉयल्टी नहीं होगी थोड़ी सी. अगर कोई ब्रांड रॉयल ज़्यादा है तो वो ब्रांड रॉयल उसमें लॉयल होगा, फिर वो ब्रांड हाई प्राइस पे भी खरीदेगा, लो प्राइस पे भी खरीदेगा, वो तो ब्रांड लॉयल है. तो ये बात है. ना इम्पोर्टेंस की बात करूँ मैं कुछ. Small numbers of big firms cause a high degree of interdependence with a regard of their price and outputs. Because of this interdependence, each firm has to account for the possible reaction of other firm in the market. Whenever it plan any change in its product price of the or the level of output, accordingly, no specific relationship can be established between price and output of an oligopoly firm, which is why there is no generally accepted theory that explain how equilibrium is achieved by कोई अचीव नहीं होगा, equilibrium वगैरह कुछ भी नहीं होगा इसमें, यूँ है. नाउ नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट टू ट्रेस फ्रॉम डिमांड कर्व. जो ओलिगोपोली होता है, ओलिगोपोली मार्केट है, इसमें जो डिमांड कर्व है वो इनडिटरमाइंड डिमांड कर्व होता है. It is not possible to determine firms' demand curve under oligopoly, simply because it is not possible to establish any precise relationship between price and quantity of demanded. इससे पहले वाले पॉइंट में भी आपको बताइए मैंने, प्राइस इंटरडिपेंडेंस वाले में भी ये बात. Thus, when a firm lowers its price, demand for its product may not increase because the rival firms may lower the price proportionally greater. मैंने बताया था प्राइस अगर एक ने बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, तो दूसरा प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो वहाँ उसकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी. इसमें इसलिए यहाँ कोई भी डिमांड कर डिटरमाइन नहीं होता है. फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स with a view of avoiding competition, oligopoly firms are often driven a form cartels. A cartel is a formal agreement among the firms to collude and avoid competition. competition को अवॉइड करने के लिए इसमें जो कुछ गिनी हुई चुनी फर्म्स है वो आपस में कार्टेल, एक समूह बना लेती है, ग्रुप्स बना के प्राइस डिटर्मिनेशन करती है और मार्केट को रन करती है. It is a situation of clash of oligopoly. Under its output quotes and prices are fixed by the various firms as a group. Sometimes leading firm in the market is accepted by the cartel as a price leader. Arm firms in the cartel choose the same price as set by the price leader.
Collusive oligopoly is like a monopoly form of the market. Cartel takes full control of the market and exploit it is like a monopolist. इसमें जब कार्टेल फॉर्मेशन हो जाता है तब इसमें तो एक लीडर फर्म होगी, तो लीडर फर्म सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो कोको कोला लीडर फर्म है। तो कोको कोला ने जो प्राइस डिसाइड किया है वो अधिकतर जो फर्म्स है वो उसी प्राइस तक के आसपास ही अपनी प्राइस डिटरमाइन करेंगी। तो अपने इंडिया की बात करूँ मैं, इंडिया में कौन है, ऑटोमोबाइल से सॉरी एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो इंडिया में एयर इंडिया जो कंपनी है, फर्म है जो इंडिया में लीडर है, ऑटोमोबाइल कंपनी के लीडर है, तो वो प्राइस लीडर होगा, वो प्राइस डिसाइड करेगी और जो कार्टेल बना रखा है उस अदर कंपनीज अदर फर्म्स है वो उस प्राइस को एक्सेप्ट करेंगी। तो प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करेगा, लीडर फर्म, और प्राइस एक्सेप्ट कौन करेगा, फॉलोवर फर्म्स। Entry barriers, there are various barriers to the entry of new firms. These are created largely through patent rights and are almost similar to those under monopoly. जो एंट्री होती है, एंट्री पर वेरियस रहते हैं, पेटेंट के थ्रू ही या कुछ लाइसेंस वगैरह के थ्रू ही ओलिगोपोली मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। Because of these barriers, the existing firms are seldom worried about the possible erosion of demand in the near future. They continue to earn extra normal profit even in the long run. Non-price competition. Next feature is non-price competition. Under oligopoly, firms tend to avoid price competition. Instead, they focus on non-price competition. Example, in India, both Coke and Pepsi drinks sell at the same price. However, in order to enhance its share of the market, each firm stays to aggressive non-price competition. Examples, Coke and Pepsi sponsor different games and sports. These are also offer lucrative schemes like of maintenance of school garden when bulk purchase are made on regular basis. नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, इसमें प्राइस के ऊपर किसी प्रकार का किसी भी टाइप का कंपटीशन होता ही नहीं है ओलिगोपोली में। हर एक चीज़ को अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश की जाएगी और सोशल वर्क किया जाएगा कंपनियों के थ्रू और स्पॉन्सरशिप ली जाएगी, इस तरीके से सारा काम होएगा। नेक्स्ट इज कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली के ऊपर डिस्कशन करते, दोनों में डिफरेंस चेक करते। कोल्यूसिव ओलिगोपोली इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑपरेटिव ओलिगोपोली। जो कोल्यूसिव ओलिगोपोली है उसको हम कोऑपरेटिव ओलिगोपोली के नाम से भी जानते हैं। Collective oligopoly is a form of the market in which there are few firms in the market and all decide to avoid competition through a formal agreement. They collude to form a cartel and fix themselves output costs and market price. समटाइम जो कॉलेक्टिव होता है इसमें कार्टेल बना लेते हैं, कार्टेल बना के प्राइस डिसाइड होती है, आउटपुट डिसाइड होता है। समटाइम्स ए लीडिंग फर्म इन द मार्केट इज एक्सेप्टेड बाय द कार्टेल एज ए प्राइस लीडर। कोलिसिव ओलिगोपोली में क्या जो मार्केट की जो बड़ी फर्म है उसमें लीडिंग फर्म होगी उसको प्राइस लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। मेंबर्स ऑफ द कार्टेल एक्सेप्ट द प्राइस एंड फिक्स बाय द प्राइस लीडर। मार्केट की जो प्राइजेज होगी वो फिक्स की जाएगी लीडर फर्म्स के द्वारा, प्राइस लीडर के थ्रू। नॉन कलेक्टिव ओलिगोपोली की बात करें, ऑल्सो कॉल्ड नॉन कोऑपरेटिव ओलिगोपोली, इज ए फॉर्म ऑफ द मार्केट इन विच देयर आर फ्यू फर्म्स इन द मार्केट एंड ईच फर्म pursues price and outputs policy independent of the rival firms. Each firm tries to increase its market share through competition. Competition is preferred to collective as a means of profit maximization because there are only a few big firms in market. There is cutthroat competition. तो नॉन कोलेसिव ओलिगोपोली होगी, इसमें कट थ्रोट कॉम्पिटिशन पाया जाएगा। हर एक फर्म दूसरी फर्म को नीचे गिराना चाहेगी, हर दूसरी फर्म एक दूसरी फर्म को मार्केट से आउट करना चाहेगी।
हर एक फर्म दूसरी फर्म के मार्केट शेयर पर कब्जा करना चाहेगी। प्राइस कंपटीशन बहुत भयंकर होता है इसमें। तो ओलिगो जो नॉन कोलिस्टिव ओलिगोपोली है, इसमें किसी टाइप का कार्टेल फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई लीड प्राइस लीडर नहीं होता है। ये सब कुछ इसमें एक दूसरे को काटते मारते मरने मारने के लिए रेडी रहते हैं इसमें, सीधी सी बात ये है। तो आज हमने ओलिगोपोली के बारे में डिस्कस किया। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू।